آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے اپنی طرف سے کسی خاص موضوع کا انتخاب نہیں کیا ہے، بلکہ یہ موضوع ضلعی جمعیت اہل حدیث پرہیڑ فروغ ضلع صاحب گنج کی جانب سے ایک منتخب عنوان ہے، اور تقریباً پرہیڑ فروغ کی ساری مسجدوں میں آج اسی موضوع کے اوپر خطاب ہوگا۔ وہ موضوع ہے خدمت دین میں صحابہ کرام کا کردار، یعنی دین کی خدمت کرنے میں صحابہ کرام کا کیا رول تھا یا ان کا کردار تھا، یہ بتانا۔ اس موضوع کے انتخاب کا مقصد کیا ہے؟ اس کے کئی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آج پورے دنیا کے اندر اور خصوصاً اپنے ملک ہندوستان کے اندر آج اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ اسلام دشمن، اسلام کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور پھر انہیں مٹانے کی ہر پل کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو طرح طرح سے بدنام بھی کیا جا رہا ہے، اور یہیں تک بس نہیں بلکہ اس اسلام کے لانے والے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں بھی کی جا رہی ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کی جا رہی ہے، اور نبی کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے بھی پھیلائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والا مہینہ نومبر کا مہینہ 9 اور 10 تاریخ 2 دن دلی کے رام لیلا میدان میں عالمی پیمانے پر ایک بہت بڑا اجتماع اور کانفرنس ہونے جا رہا ہے، جس میں ملک کے علماء کرام کے علاوہ بیرونی ملک کے علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، اور مختلف عناوین پر وہ لوگوں کے سامنے بات کریں گے، جن میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور مختلف عناوین پر واضح و نصیحت کریں گے اور اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اور اسلام کے خلاف جو طرح طرح کے شکوک اور شبہات لوگوں کے دلوں کے اندر خصوصاً اسلام دشمنوں کے اندر جو ہے ان پر خصوصی طور پر توجہ دی جائے گی اور خصوصی طور پر ان پر خطاب کیا جائے گا۔ اس موضوع کا انتخاب کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے دین کی خدمت کی، اسی طرح ملت اسلامیہ کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اسی طرح دین کی خدمت کریں جس طرح صحابہ کرام نے دین کی خدمت کی، اور دین کی خاطر تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دینے کے لیے وہ تیار رہے۔ اسی طرح ان کے واقعات کو سن کر، ان کے قصے اور کہانیاں کو سن کر، ان کے کردار کو سن کر ہر مسلمان کے اندر ایک ولولہ ہونا چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ آخر دین جو پھیلا، اسلام جو پھیل رہا ہے، اس میں صحابہ کرام کی کس قدر قربانیاں تھی، تو کیوں نہ ہم بھی اسی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ کی طرح ہم بھی دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر نبی کے صحابہ اگر دین کی تبلیغ نہ کرتے، دین کی نشر و اشاعت نہ کرتے، دین کے لیے اپنی قربانیاں نہ دیتے، تو شاید کہ آج یہ دین ہم تک پہنچ بھی نہیں پاتا۔ جس طرح نبی کے صحابہ نے کوشش کی، محنتیں کی، اور محنت و کوشش کر کے دین کو
दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, अगर वो मेहनत ना करते, मुशक्कत ना करते और सिर्फ अपने ऊपर निर्भर रहते, सिर्फ अपने ही तक बस रहते कि हम तो नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सदका खैरात करते हैं और दीगर काम हम अंजाम देते हैं, बाकी दूसरा काम करने की क्या जरूरत है। अगर सहाबा अगर दीन की खिदमत ना करते तो आज ये दीन शायद हम तक ना पहुंच पाता, और अगर ये दीन हम तक ना पहुंचता तो फिर शायद कि हम इस दान से भी महरूम हो जाते हैं, और फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदनसीबी और बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात होती। तो जिस तरह सहाबा ने दीन को फैलाया और दीन हम तक पहुंचा, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीन को लोगों तक पहुंचाएं, दीन की नश्र इशाअत करें और दीन की खिदमत में हम लगे रहें, कोशा रहें। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को इस दुनिया के अंदर लाया, और लाने के बाद हज्जतुल विदा का मौका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फलयुबल्लिगी शाहिदुल गायब, जो यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो जो यहाँ नहीं है उन तक दीन को पहुंचा दे। जो यहाँ मौजूद है, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, हर सुनने वाला आदमी जो यहाँ मौजूद नहीं है उनको जाके सुना दे मेरी बात को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि दुनिया के लोगों सुनो, मुसलमानों सुनो, अगर तुम मेरी एक ही बात अगर जानते हो, एक ही बात तुम्हें मालूम है, तो वो बात भी तुम दूसरों तक पहुंचा दिया करो। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप जानते हैं किसी भी समाज के अंदर, किसी भी माशरा के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर बुराई कब फैलती है, माशरा कब बिगड़ता है, माशरा कब बर्बाद होता है, लोग दीन से दूर कब होते हैं, लोग नमाजों से दूर कब होने लगते हैं। क्या पता है आपको कब होने लगते हैं? लोग उस वक्त दीन से दूर होने लगते हैं, माशरा के अंदर बुराइयां उस वक्त जन्म लेने लगती हैं, माशरा के अंदर बदकारियां उस वक्त बढ़ जाती हैं, लोग दीन से उस वक्त दूर होने लगते हैं, लोग नमाजों से उस वक्त दूर होने लगते हैं जब समाज के अच्छे और सच्चे लोग, जब समाज के नेक लोग, जब समाज के नमाजी लोग जब ये दीन की दावत करना छोड़ देते हैं, जब अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के काम को ये छोड़ देते हैं, जब लोगों को भली बात बताना और बुरे कामों से रोकना छोड़ देते हैं, तब जाकर के समाज के अंदर तरह तरह की बुराइयां जन्म लेने लगती हैं। समाज के अंदर एक जुआरी है तो जुआ में इजाफा होने लगता है, शराब खाने खूब ज्यादा और ज्यादा चलने लगते हैं, शराब पीने वालों में बढ़ोतरी होने लगती है, बुराई और बदकारी करने वालों में बढ़ोतरी होने लगती है, बेनमाजियों की सफों में इजाफा होने लगता है। तो समाज के अंदर बुराइयां उस वक्त ज्यादा बढ़ने लगती हैं और उस वक्त माशरा तबाही और बर्बादी के दहाने में चला जाता है, जब समाज के अच्छे और सच्चे लोग सिर्फ अपने ऊपर बस करके समाज को बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं, उन्हें मालूम नहीं कि जब माशरा जलेगा, आग उसके घर में लगी है, मगर एक ना एक दिन उसकी चिंगारी हमारे घर तक भी आने वाली है, और जब वो चिंगारी हमारे घर तक आएगी तो हमारे घर को भी जला देने के लिए वो काफी होगी। आज अगर ये माशरा हम सोचते हैं कि बस हम ठीक हैं, हम ईमान वाले हैं, हम नमाजी हैं, हमें दूसरों से क्या मतलब है, लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, कल ऐसा भी दिन आने वाला है जब हम अपने ईमान को बचाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, अपने बाल बच्चों के ईमान को बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। चिंगारी आग लगी उसके घर में, लेकिन चिंगारी हमारे घर में आएगी और हमारे घर को भी जला देगी।
इसी लिए सहाबाए किराम ने ये बेड़ा उठाया, ये जिम्मा अपने कंधे पे लिया। नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन्होंने भरपूर दीन की खिदमत की, अल्लाह के नबी की भरपूर मदद की, दीन की नश्र इशाअत में, दीन की दावत में, दीन की तबलीग में। और उसके बाद नबी के वफात के बाद भी नबी के सहाबा ने दीन को अरब की सरहदों से बाहर निकाला। जरूरत इस बात की है कि नबी के और नबी के सहाबा के नक्श कदम पर हम चलें। अल्लाह ने फरमाया, सूरह बकरा की आयत है, फइन आमनू बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फकद इहतदऊ, कि लोगों सुनो, अगर तुम्हारा ईमान इसी तरह का ईमान होगा जिस तरह नबी के सहाबा का ईमान था, तब तो अल्लाह ताला तुम्हें भी हिदायत याफ्ता लोगों में शुमार करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक, और अगर तुम रूबेदारी करोगे, अपने तुम मुंह को मोड़ लोगे, तो फिर तुम सरीह इख्तिलाफ के अंदर पड़ जाओगे। इसलिए जरूरत है कि अल्लाह का फरमान है कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, कि तुम लोगों को दावत दो, लोगों को उनको उनकी बुराइयों से रोको, मगर तरीका इस्लाम ने बतलाया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया हसन, कि तुम अहसन तरीके से, उम्दा तरीके से, बेहतरीन तरीके से, हिकमत से, नसीहत से तुम लोगों को बुराइयों से रोको, नमाज की दावत दो, लोगों को सही रास्ते पर लेकर के आओ, तो फिर यकीनन वो काम कारगर होगा और लोगों के अंदर सुधार भी आएगा। समाज और माशरा के अंदर वो माशरा पाक भी होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब आइए देखते हैं सहाबाए किराम ने क्या रोल अदा किया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब इस दुनिया के अंदर नबी बना करके भेजा, आखिरी नबी, इस नबी से पहले बहुत सारे नबी आए थे, तकरीबन 1,24,000 नबी आए थे, मगर दीन मुकम्मल नहीं हुआ था, दीन पूरा नहीं हुआ था इतने नबी आने के बाद भी, क्योंकि वो नबी जो थे एक वक्त के लिए थे, या एक खास कौम के लिए थे, या एक जमाने के लिए थे। फिर उसके बाद वो नबी जब तक रहते तब तक लोग उस नबी की बातों पर अमल करते, फिर जब वो नबी दुनिया से चले जाते तो उसके बाद लोग फिर उस नबी की दीन को, उस नबी की दावत को धीरे धीरे भूल जाते, फिर वही गुमराहियां उसके अंदर आ जाती। फिर अल्लाह दूसरा नबी भेजता, फिर दूसरा नबी आने के बाद फिर तीसरा, फिर अल्लाह एक नबी और एक किताब भी भेजता, फिर नबी चला जाता, फिर लोग दीन को भूल जाते, और फिर उस किताब के अंदर भी वो लोग तहरीफ और तब्दील कर देते, किताब के अंदर भी तब्दीली कर देते, बदल देते, उसकी कुछ बातों को निकाल लेते और कुछ बातें अपनी तरफ से दाखिल कर देते। इसी तरह अल्लाह एक नबी एक रसूल, फिर एक किताब, फिर दूसरी नबी दूसरी किताब, फिर तीसरा नबी तीसरी किताब, इस तरह अल्लाह ताला भेजता रहता। और फिर जब नबी दुनिया से चले जाते तो फिर लोग उनकी दीन को, उनकी दावत को भूल जाते और फिर किताबों के अंदर तब्दीली भी कर देते। मगर अल्लाह ने जब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा, और भेजने के बाद अल्लाह ने अल्लाह की आखिरी नबी के जरिए से ही इस्लाम को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। और मुकम्मल किस तरह हुआ? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहले की शरीयत में और इससे पहले के नबियों को जो किताबें मिली थी, उन किताबों की हिफाजत के अल्लाह ने गारंटी नहीं दी थी। लेकिन अल्लाह ने जब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब अल्लाह ने दिया कुरान मजीद की शक्ल में, इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने खुद अपने जिम्मा में ले ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, क्या हमने इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली है। अब कोई इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता, अब इसको कोई बदल नहीं सकता, अब इसके अंदर कोई हेर फेर नहीं कर सकता। एक तरफ अल्लाह ने इस इस्लाम की और इस दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की, और दूसरी तरफ अल्लाह ने अल्लाह के नबी को ऐसे सहाबा अता फरमाए जो सहाबा
नबी के ऊपर जान निछावर करने वाले सहाबा थे। ऐसे सहाबा अल्लाह ने नबी को अता फरमाया कि वो सहाबा नबी के जमाने में भी दीन की खूब ज्यादा खिदमत की और फिर नबी के वफात के बाद भी उन सहाबा ने जम करके दीन की खिदमत की। सहाबा किराम जब भी तन्हाई में होते सोचते कि हम दीन के लिए क्या कर सकते हैं। हम आप क्या सोचते हैं, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सहाबा किराम सोचते कि हम दीन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, हम दीन की खिदमत कहां तक कर सकते हैं, हम दीन के लिए अपना कितना समय दे सकते हैं, हम कितना टाइम उसमें दीन के लिए लगा सकते हैं। ये सहाबा किराम गौर करते सोचते कि हम दीन की नशो इशात के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए हम कितना, अल्लाह ने जो माल दिया है उस माल से हम कितना खर्चे कर सकते हैं और दीन की नशो इशात कर सकते हैं, दीन की सरबुलंदी हम कर सकते हैं। ये सहाबा किराम सोचते और दीन की नशो इशात में वो फिक्रमंद रहते थे। मशहूर वाकया है, आपने इससे पहले भी सुना होगा कि गज़वा तबूक का मौका है, अल्लाह की नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से माल इकट्ठा करने की दरखास्त की, माल जमा करने के लिए कहा, दरखास्त की, सदका व खैरात जमा करने के लिए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर गए और घर में जाने के बाद वो गौर फिक्रे करने लगे, सोचने लगे कितना माल ले जाए नबी की बारगाह में। चुनांचे उन्होंने फिर घर का पूरा माल इकट्ठा किया और तमाम मालों को वो 2 हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्सा घर में रखा और एक हिस्सा उठा करके नबी की बारगाह में लाके डाल दिया। इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, उन्होंने भी अपना सारा माल लेकर के आया। अल्लाह के नबी ने उमर से पूछा, उमर कितना लेके आए हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा माल जो घर में था सबको 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा घर में है और आधा आपके कदमों में लाके मैं डाल दिया हूँ। अबू बकर से पूछा, अबू बकर क्या लाए हो? कहा सारा माल लेकर के आया हूँ, घर में कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा तो घर में क्या तुम छोड़ के आए हो? कहा बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ के आया हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ करके आया। तो सहाबा गौर फिक्र करते दीन की नशो इशात कैसे हो, दीन कैसे फैले, दीन की दावत व तबलीग कैसे हो, दीन की सरबुलंदी कैसे हो। आले कलमतुल्लाह के लिए अपना टाइम भी लगाते, अपना समय भी लगाते, अपनी जान की कुर्बानी भी देते, अपने माल की कुर्बानी भी देते। जान की कुर्बानी, नबी के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार होते। आइए दूसरा वाकया देखते हैं। अल्लाह की नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि काफिरों के तरफ से 24,000 का लश्कर आ रहा है जो मुसलमानों के ऊपर हमला करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा चलो उनके मुकाबले के लिए निकलते हैं। साथ ही साथ उन यहूदियों से भी कहा जिनसे अल्लाह के नबी का माहिदा था कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो तुम हमारी मदद करना। चुनांचे उन यहूदियों से भी कहा, वो यहूदी अपने माहिदा के मुताबिक नबी के साथ निकल गए। जब मदीने के दरवाजे पे पहुंचे तादाद को गिना गया, सिर्फ 3,000 मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे, कुल मिला के 3,000। दूसरी तरफ कुफार का जो लश्कर है, एक लश्कर जर्रार 24,000 का लश्कर। जब यहूदियों ने देखा कि काफिरों का लश्कर है 24,000 का, आज मुसलमानों को दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती है, वो यहूदियों ने अपना वादा तोड़ दिया और वहां से साथ छोड़ के भाग खड़े हुए। यहूदियों ने खिसकना शुरू कर दिया, सब के सब निकल गए। एक रिवायत के अंदर 1200, दूसरी रिवायत के मुताबिक 1300 भाग खड़े हुए। सिर्फ 1700 मुसलमान नबी के साथ थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की तरफ निगाह दौड़ाई, कहा साथियों बैठ जाओ। सब के सब बैठ गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि अब तुम में से भी अगर कोई शख्स जाना चाहता है, पलटना चाहता है तो पलट जाए, मेरी तरफ से इजाजत है।
सहाबाए किराम खामोश हैं। एक ने जुरत करके पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम वापस चले गए तो आप अकेले क्या करेंगे? हाय हाय, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या कहा? अगर तुम पलट गए तो हम अकेले क्या करेंगे? सारी दुनिया देखेगी कि एक तरफ 24,000 का लश्कर चल रहा है और एक तरफ तन्हा व यक्का जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुकाबला कर रहा। तुमने क्या समझा मैं भी भाग जाऊंगा? यह अल्लाह का दीन है। तब तक सहाबाए किराम फिर से तैयार हो चुके थे। अल्लाह के नबी से कहते हैं, सहाबाए किराम साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खड़े हो गए, कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा की कौम नहीं है जो हम ये कहेंगे फज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। क्या मूसा आप जाइए और आपका रब जाकर के लड़िए दुश्मनों से, हम यहीं बैठे हुए रहेंगे। मूसा की कौम ने मूसा से कहा था कि आप जाइए, आप और आपका खुदा जाकर के लड़े दुश्मनों से, हम यहीं बैठे हुए रहेंगे। अल्लाह के नबी, हम मूसा की कौम नहीं है जो हम भी ये कहेंगे फज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, बल्कि हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। आपका इशारा आबरू हो, समुद्र के आपका इशारा आबरू हो, पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दो, हम लगाने के लिए तैयार हैं। हम अल्लाह के नबी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि अल्लाह के नबी आपने पहाड़ जैसी ऊंची जगह पहाड़ की चोटी से आपने हमें कूदने के लिए क्यों कहा? हमारे तो बाल बच्चे भी हैं, हमारे पीछे तो और बहुत सारे रिश्तेदार हैं, हम तो मर सकते हैं, हमारे हाथ टूट सकते हैं, हमारे पैर टूट सकते हैं, जर्रा बराबर भी एतराज नहीं करेंगे। आपका इशारा आबरू हो, पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दो, हम लगा देंगे। आपका इशारा आबरू हो, समुद्र के सीने को चीर दो, हम चीर देंगे। ये सहाबाए किराम थे जिनका दीन से मोहब्बत था, जिनको नबी से मोहब्बत थी। ये सहाबाए किराम थे जिन्होंने दीन की खातिर क्या नहीं कुर्बान। मेरे भाइयों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम सहाबाए किराम की तरह अपने ईमान को मजबूत करें और समाज, सोसाइटी और माशरा को बात करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले तन्हाई में लोगों को दीन की दावत देना शुरू किया। शुरू में इब्तिदान और सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से जो लोग मुसलमान हुए तो अल्लाह के नबी ने उन लोगों को दावत दी जो नबी के करीबी थे, जो नबी के जान पहचान थे, जिनके चेहरे के अंदर भलाई नजर आ रही थी। अल्लाह के नबी ने उनको दावत पेश की। चुनांचे नबी की बीवी खदीजा मुसलमान हुई, अबू बकर मुसलमान हुए, ज़ैद मुसलमान हुए, अली मुसलमान हुए। फिर इन लोगों ने पहले ही दिन इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब अकेले ये दीन की दावत और तबलीग करने लगे और नबी के साथ भी मिलकर और अकेले में भी तबलीग करने लगे। और अबू बकर की मेहनत से, इनकी कोशिश से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, तलहा बिन ज़ुबैर ने इस्लाम कबूल किया और बहुत सारे सहाबाए किराम ने अबू बकर की मेहनत और इनकी कोशिश से इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इसी तरह उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आपको फारूक का लक़ब अल्लाह के नबी ने क्यों दिया, आपको फारूक का लक़ब अल्लाह के नबी ने क्यों दिया, तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए उसके 3 दिन के बाद मैंने भी इस्लाम कबूल किया और जब मैंने इस्लाम कबूल किया और हमजा ने भी इस्लाम कबूल किया था तो मैंने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हक पर नहीं आए, खा हम जिंदा हो या मरे हो, हम हक पर हैं कि नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ उमर, हम हक पर हैं, चाहे हम जिंदा हो चाहे हमें मौत से दो चार होना पड़ेगा, हम हक पर कायम
नहीं, हम हक पर है। तो फिर उमर ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर ये छुपना क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त छुप छुप करके काम करते थे और पहाड़ों जंगलों की तरफ जाकर के नमाज भी पढ़ा करते थे और दारे अरकम के घर में मुसलमानों के साथ वो छुप करके मौजूद थे। उमर ने कहा तो फिर हम हक पर हैं, तो फिर ये छुपना कैसा है, चलिए बाहर निकालिए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमर फारूक ने बाहर निकाला। एक सब दो सब बनाई गई, एक सब में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, एक सब में उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और दोनों सब के बीच में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के खाना काबा में पहुंचे, मस्जिद हराम के अंदर पहुंचे। ये उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। उमर खुद कहते हैं कि जब कुफार ने देखा हमको और हमजा को, जब दोनों को काफिरों ने जब देखा नबी के साथ और मुसलमान होने की जब उनको खबर हुई तो उनको इतना चोट लगा, इतना चोट लगा कि जिंदगी में कभी भी उनको इस तरह का चोट नहीं लगा था। उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फारूक का लक़ब दिया। फारूक का माना होता है हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। फारूक का लक़ब उसी वक्त अल्लाह के नबी ने मुझे दिया था। तो ये उमर फारूक थे जिन्होंने अपने दौर में नबी के वफात के बाद भी इस्लाम को अरब की सरहदों से बाहर निकाला। नबी के जमाने में भी सहाबा इकराम ने दीन की खिदमत की। नबी दुनिया से चले जाते हैं, तरह तरह के फितने होते हैं। एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना कि झूठी नबूवत का दावा करने वाला मैं अल्लाह का नबी हूँ। एक तरफ ये ज़कात के मानई ने ऐलान कर दिया कि हम ज़कात नहीं देंगे। एक तरफ कोहिस्तान का एक कबाइल था वो मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर हो गया। तरह तरह के फितने। अबू बकर ने कहा जाओ तलवारों को बेनियाम कर लो। उमर ने कहा किस किस के खिलाफ हम जंगे करेंगे, कहा कि सब के खिलाफ जंगे करेंगे। और चुनांचे उन्होंने इस तरह माशरा को पाक और पवित्र बनाया और यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंचा किया हुआ झंडा को उन्होंने कभी भी नीचा होने के लिए नहीं दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, सहाबा इकराम ने हर तरह से दीन के लिए मेहनत की है, हर तरह से कुर्बानी दी है। और सहाबा के बाद फिर ताबेईन ने, फिर तबे ताबेईन ने, फिर मुहद्दिसीन ने एक एक हदीस को कहां कहां से ढूंढ ढूंढ करके निकाला। अबू बकर उस्मान के जमाने में कुरान को जमा किया गया और जमा करने के बाद उस्मान के जमाने में तरतीब दिया गया, उसको एक नुस्खा बनाया गया। आज हम हमारे पास जो कुरान है जिसे हम पढ़ते हैं, अगर इसी तरह बिखरा हुआ रहता तो आज हम इस कुरान को कैसे पढ़ पाते और इससे हम बरकतों को कैसे हासिल कर पाते। ये उन्होंने मेहनत की। और उसके बाद के फिर क्या किया गया, फिर उसके बाद कुरान के अंदर पहले जेर जबर नहीं था, फिर उसमें जेर जबर दिया गया जिसकी वजह से हम आसानी से कुरान को पढ़ लेते हैं। उसके बाद मुहद्दिसीन है, मुहद्दिसीन ने एक एक हदीस को ढूंढ ढूंढ करके निकाला, लंबे मीलों तक सफर करके एक एक हदीसों को निकाला। वो हदीस आज हमारे सामने किताबों की शक्ल में मौजूद है। इसी तरह उलमा इकराम ने बेशुमार जेल खाने में भी गए और दीन की खिदमत की। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये दीन की दावत के लिए फर्ज करार दिया है। और अल्लाह ने भी खुद कहा है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और बेहतरीन उम्मत होने की वजह यह है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो। अगर हम भलाई से नहीं रोकते, बुरे कामों से नहीं रोकते हैं और भलाई का हुक्म नहीं देते, तब तो बेहतरीन उम्मत हम है ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत के लिए शर्त लगाई कि तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम भले कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, जरूर इस बात की है कि हम खुद भी नेक अमल करें और हमारे भाइयों को भी दीन की दावत दें और उनकी इस्लाह करें। हम इससे पहले अपने खुतबा को ख़त्म करें। आपके सामने एक ऐलान भी जमीयत की तरफ से बयान करने के लिए कहा गया है और वो ऐलान ये है कि आइंदा 9 और 10 तारीख नवंबर को ये दिल्ली के अंदर जो बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है उसमें काफ़ी खर्च हैं, उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आप लोगों से कुछ उसमें ताउन की दरखास्त की गई है। जहाँ तक मुमकिन हो सकता है आपसे, आप दीन की खिदमत के लिए जो भी आपसे बन पड़े, आप अपने ज़कात और खैरात से आप देने की कोशिश करेंगे। नमाज के बाद कुछ बच्चे बाहर बैठे हुए रहेंगे,
آپ ان کو جو بھی آپ سے بن پڑے آپ دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مال و دولت کے اندر مزید برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے اور سچا پکا مومن اور مسلمان بنائے. یا العالمین ہم جیسے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تو ان بیمار کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. العالمین ہم جیسے جتنے لوگ قرض دار ان کے قرض کی ادائیگی میں مدد فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین آمین.